DigiYatra app, launched by the Ministry of Civil Aviation, is a contactless and seamless solution based on facial recognition technology for quick passage of passengers at airports. It envisages a hassle-free digital experience for air travelers with benefits such as minimum human intervention, less queuing time, enhanced security. In addition, airport operators will have real-time information on passenger load, leading to better resource planning. At all checkpoints including entry point check, security check, aircraft boarding, etc., passengers will be automatically processed based on the facial recognition system. It will also facilitate self-bag drop and check-in. To use this facility, one-time registration on DigiYatra app is required using Aadhaar-based validation and a self-image capture. DigiYatra is to be implemented across airports in a phased manner. The first phase was launched on 1st December 2022 at Delhi, Bangalore and Varanasi airports. This phase will also cover Kolkata, Pune, Vijayawada and Hyderabad airports by March 2023. The initiative is in line with Prime Minister Narendra Modi's vision of a digital India with an aim to transform the nation into a digitally empowered society. DigiYatra app is making Indian airports meet global standards of excellence with a world-class travel experience. Hi everybody. The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper. Today is 16th of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, प्रोग्रेस में इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे डिपेंड होना ज्यादा फायदेमंद होता है. इंटेंसिटी इट वोंट लास्ट, बट अगर कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, गुड हैबिट्स है तो ये लास्ट करता है. Part of courage is simple consistency. Study full throttle. This is test series 2023 course. Before writing 28th of May 2023 exam, at least 10,000 plus MCQ आपको solve करने चाहिए. This is syllabus, और syllabus में भी जो preliminary exam का syllabus है, these are 7 pillars. ये सारे 7 pillars आपके ready होने चाहिए. So prelims 2023 में we are systematically covering entire thing, all the syllabus part of this exam, including CSET. So these are two courses. This is test series and this is prelims. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. A while का मतलब होता है for a short time, कुछ समय, for a moment, for a while, for a bit. festoon का मतलब होता है सजाना, adorn with ribbons, garlands or other decorations. Intransigent इसका मतलब है सैद्धांतिक, unwilling or refusing to change one's view or to agree about something. Indelible का मतलब होता है अमिट, making marks that cannot be removed. Adeptness का मतलब होता है निपुणता, subtle or imaginative ability in inventing, devising or executing something. So आज के vocab words हैं adeptness, indelible, intransigent, festoon or a while. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is exam fact series number 16. Which house is identified as the democratic chamber? The answer is Lok Sabha. Which house is described as knowledge house? The answer is Rajya Sabha. To contest for the election of Lok Sabha, the person should be citizen of India. और लोक सभा की एक एज लिमिट भी होता है. इतना मैक्सिमम, इतना मिनिमम एज होना चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए. वो एज क्या है? आंसर. और राज्यसभा की भी एज बताइए. An ordinance promulgated by the president when one house is in session, तो वो वैलिड रहेगा कि अगर एक हाउस सेशन पे है और दूसरा नहीं है, कंप्लीट पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और उस केस में अगर एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं प्रेसिडेंट 1, 2, 3 के अंदर, तो वो भी वैलिड रहेगा. Parliament has exclusive power to make laws with respect to any matter enumerated in List 1, Schedule 1. State legislature has exclusive power to make laws with respect to any matter जो List 2 में है, मतलब वो state subject में है. Who has the power to make laws on the subject enumerated under List 3 of 7th Schedule? तो यहाँ पर पार्लियामेंट भी बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं. आप बताइए, अगर उसमें पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया, राज्य ने भी लॉ बनाया, तो किसका लॉ प्रिवेल होगा? और इसे कौन सी डॉक्ट्राइन बोला जा सकता है?
A resolution passed by the Rajya Sabha empowering the parliament to legislate under state shall remain in office for a maximum period of 1 year. 1 year. A fund which is utilized to meet the unforeseen expenditure उसको contingency fund बोलते हैं. ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? टेल. कस्टडी ऑफ कंटिंजेंसी फंड प्रेसिडेंट के पास होती है, सो दिस इज एग्जीक्यूटिव एक्शन. सो ये क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के. सिमिलरली हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी देखने वाले हैं. दिस इज CSAT सीरीज. सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द आंसर? टेल. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. मैथ्स CSAT डेली बेसिस पे सॉल्व करिए, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1. नाउ दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस. राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ रिवर ड्रेनेज पैटर्न्स. मैंने आपको एक PDF भी शेयर किया है. रिवर ड्रेनेज पैटर्न NCERT में भी लिखा हुआ है, हमने पढ़ा. रिवर ड्रेनेज पैटर्न पे एक नोट बनाइए. डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं. डेंड्रिटिक है, ओके, सेंट्रिपिटल है, रेडियल पैटर्न है, लाइक दैट. सो ड्रेनेज पैटर्न पे एक नोट बनाना है और विद डायग्राम्स बनाना है और साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं. प्रिपेयर अ नोट ऑन द अर्थक्वेक जोन्स ऑफ इंडिया. तो अगर अर्थक्वेक जोन्स इंडिया के बनाए तो उसमें कैसा मैप बनेगा, क्या नोट बनेगा? जोन 5, जोन 4, जोन 3 एटसेट्रा. सजेस्ट सम इनोवेटिव डिजास्टर रिलीफ मेजर्स टू प्रिपेयर फॉर अर्थक्वेक. तो कुछ इनोवेटिव मेजर्स भी बताइए अर्थक्वेक को रिलीफ मेजर्स के लिए. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको आप लिख के कंसोलिडेट करिए. अभी टर्की में भी अर्थक्वेक आया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आएगा. सी, ऐसे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, घंटों घंटों वीडियो देखते हैं, बट जब आप लिख के उससे देखते हो ना तो वो चीज कंसोलिडेट होती है और इसको रियल स्टडी बोला जाता है. ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल. आप जो आंसर्स लिख रहे हो इस वेबसाइट में, शो योर आंसर्स टू योर एल्डर्स, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, समबडी हु हैज नॉलेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन. उसको आप दिखाओ, ये कॉपी दिखाओ और बताओ इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं. दे विल अप्रिशिएट यू. घंटों घंटों वीडियो देखने को पढ़ाई नहीं बोलते हैं. यू आर लाइक, इट इज नॉट स्टडी. ये जो एग्जाम है ये ओल्ड स्कूल एग्जाम है. आप उसको कलम कागज पे लिख लिख के उसको बनाओ और बैंक करो और रिवाइज करो. ये ज्यादा फायदे में रहोगे, ये ज्यादा आपको बेनिफिट पहुंचाएगा. ओके, एंड ज्वाइन अवर कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेट. दिस इज सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल कम्युनिटी. आप इसका मेंबर बनिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा. ओके, सो राइटिंग प्रैक्टिस. अब हम आते हैं सोशल मीडिया अपडेट में. अब देखिए यहाँ भी जो हम न्यूज पिक कर रहे हैं ये सीधा गवर्नमेंट रिसोर्सेज से है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट सारी मिनिस्ट्रीज इस जगह फोकस कर रही है बहुत ज्यादा. सो कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस फेमस इंडियन क्लासिकल सिंगर? आप बताइए इनका नाम क्या है. क्लासिकल सिंगर, ये रेस्पेक्टेड कार्नेटिक वोकलिस्ट है. फर्स्ट पर्सन है टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड वोकलिस्ट में, सिंगर में. First Indian musician to receive the Raman Magsaysay Award as well. So identify the person. आप हैं मेघनाद साहा साहब. 16 फरवरी 1956. एमिनेंट साइंटिस्ट है. डेथ एनिवर्सरी है. बेस्ट नोन वर्क है थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स और इसके लिए साहा इक्वेशन भी है. Remembering eminent scientist on his death anniversary, his best known work concerns the thermal ionization of elements and it led him to formulate what is known as Saha equation. मेघनाद साहा. आप हैं राजेंद्र लाल मित्रा. प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट है. इंडियन रेनेसांस के बर्थ एनिवर्सरी है. ट्रेडिशन सोसाइटी ऑफ इंडियन एंटिक्विटीज बाय इंडियंस देमसेल्व्स आपने यहाँ पर वर्क किया. तो वी आर रिमेंबरिंग प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट. ओके, सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. अब कल जैसे हमको आंसर राइटिंग भी करना था और एक आर्टिकल भी पढ़ा था अर्बन प्लानिंग. अर्बन प्लानिंग के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? तो हमें ना वेरियस 360 डिग्री में वेरियस एस्पेक्ट सोचने चाहिए. फॉर एग्जांपल वेस्ट, फूड, वाटर, ग्रीन एरिया, बिल्डिंग, एनर्जी, मोबिलिटी एटसेट्रा. अब वाटर में यू कैन थिंक ऑफ से स्टॉर्म वाटर रन ऑफ मैनेजमेंट, वाटर एंड सीवर नेटवर्क, irrigation, urban farming, food waste prevention, public health, waste management, infra, energy, renewable energy, impact of NZEB, compact cities हम बनाए ताकि जो डिजास्टर्स भी हो रहे हैं वो उसको भी विदस्टैंड करे. फॉर एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक कंप्लायंट हम बिल्डिंग कोड बनाए, ग्रीन रूफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर. तो ये होगा अर्बन प्लानिंग. इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होंगी अर्बन प्लानिंग की? एक होता है स्मार्ट सिटीज मिशन, 2015 में लॉन्च हुआ था. ऑब्जेक्टिव है 100 स्मार्ट सिटीज वर्ल्ड में बनाना, 100 स्मार्ट सिटीज कंट्री में बनाना. स्मार्ट सिटीज मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन.
तो एक ये मिशन था स्मार्ट सिटी। फिर एक मिशन था अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास अर्बन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पुअर। स्वच्छ भारत अभियान है, 2014 में लॉन्च हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान ओपन डेफिकेशन फ्री भी बनाना है। सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इन अर्बन एरिया। हृदय है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन JNNURM। सो ये कुछ नाम है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है अर्बन प्लानिंग की। 1 2 3 4 5 6 7 ये नाम आपको याद होना चाहिए और बेसिक 2-3 बातें उसकी पता होनी चाहिए। सो दिस इज अर्बन प्लानिंग। तो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना तो उसमें ऐसे नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए, वेराइटी ऑफ पॉइंट्स, सारा आप उसको कवर कर रहे हो विद इन सिलेबस, वेराइटी ऑफ पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज अर्बन प्लानिंग। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो NIA सर्चेस 40 लोकेशन इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, त्रिपुरा में पोल्स हैं। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला रिजाइंस। देन दिस इज एक्सपीडाइट वर्क ऑन इंक्रीजिंग पेंशन, गवर्नमेंट ने EPFO को बोला। आई ऑन चाइना, कैबिनेट क्लियर 7 ITBP बटालियन। अब सी चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है बॉर्डर इश्यूज में, इनफैक्ट थ्रेट है। 9,000 पर्सनल टू बी रिक्रूटेड फॉर डिप्लॉयमेंट इन अरुणाचल। 4,800 करोड़ सैंक्शन हुए हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। जो आपको बजट जो कवर करना था उसका मैंने आपको बताया था ना, जो स्पीच है निर्मला सीतारमन मैम का उसको बहुत अच्छे से देखिए और जो समरी है उसको बहुत अच्छे से देखिए। रैंडम चीजों में बहुत यूटिलिटी नहीं है, उन्हीं चीजों को मल्टीपल टाइम्स देखिए। वहां पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दिखेगा, बॉर्डर एरिया में कितना हमने टूरिज्म को सैंक्शन किया है, एटसेट्रा। ये एग्जाम जाने से पहले बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। अब सी बोल्स्टर करना है सोशल एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अलोंग द चाइना बॉर्डर, सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। यूनियन कैबिनेट ने अभी 7 न्यू बटालियन बनाने की बात की है ITBP की, और 4,800 करोड़ का प्रोग्राम दिया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, ताकि जो हमारे विलेजेस हैं बॉर्डर एरिया, अक्सर डिस्टर्बेंसेस के कारण वहां पे पॉपुलेशन कम हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है। सो वी नीड टू सस्टेन द पॉपुलेशन और बूस्ट करें टूरिज्म। तो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी ने ये प्रपोजल क्लियर किया है और 9,400 पर्सनल यहाँ पे डिप्लॉय होंगे। 47 न्यू बॉर्डर आउटपोस्ट होगी, 12 स्टेजिंग कैंप होंगे। आउटपोस्ट जनवरी 2020 में सैंक्शन हुआ था। 176,3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना से। सबसे बड़ी जो बॉर्डर है वो 4096 की है। अब इतना यहाँ पे हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे, लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, आर्म्स अम्यूनिशन प्रोवाइड होगा, इसके अलावा सैलरी राशन प्रोवाइड होगा। इंडिया और चाइना की ट्रूप्स अभी स्टैंड ऑफ पे थी लद्दाख में अभी भी है, और कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन हो रहा है बॉर्डर एरिया में। सो दैट इज वाई बॉर्डर एरिया स्पेशली चाइना के रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है गार्ड करना, और उसके लिए अब 7 ITBP बटालियंस यहाँ पे आ रही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ITBP इंक्रीज हो गया 97,000, फोर्थ लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ये बन गई है। अब आप बताओ, दिस इज फोर्थ लार्जेस्ट, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में और भी फोर्सेस होती हैं, वो कौन सी फोर्सेस होती है? आंसर, उत्तराखंड गवर्नमेंट फर्म्स अप इट्स रिलीफ प्लान फॉर जोशीमठ। तो जोशीमठ इज सिंकिंग और उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको रेस्क्यू करने का प्लान कर रही है। लैंड एंड बिल्डिंग सबसिडेंस हो रहा है यहाँ पे। हाईकोर्ट क्वेश्चंस यूज ऑफ पॉक्सो एक्ट इन असम क्रैकडाउन। पॉक्सो क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। लेस देन 18 मैरिज इज रॉन्ग, सो लेस देन 21 इनफैक्ट, सो लेस देन 18 में पॉक्सो लगता है, पॉक्सो। तो यहाँ पे अभी क्रैकडाउन चल रहा है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी डिप हुआ है 6.6%, शिपिंग स्लिप हुआ 6.6% से 6.6% पे। सो दिस इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। नाउ लेट अस कम टू एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट IT एंड दिस इज बियॉन्ड लिमिट्स। सी यहाँ प्राइमरली बात है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेटहुड दिया गया अभी यूनियन टेरिटरी में बना, और फिर वहां पर बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा का प्रोविजन भी है, और जो स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था ये फॉर टाइम बिंग था, इसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो चुनाव के लिए डिलिमिटेशन होता है।
अब डिलिमिटेशन जो प्रोसेस चल रहा था उसको अपील कर दिया गया ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना नहीं। द प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डिलिमिटेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, जो पीपल हैं दे आर सेइंग कि बेटर यहाँ पे किस तरीके से एग्जीक्यूट हो, नॉर्मलसी हो, दे आर मोर इनटू दिस। सो द पॉइंट इज कोर्ट ने इसको बोला कि ये फेट अकॉम्प्ली है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है दिस इज वेल विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस or beyond limits. So the real issues in Jammu and Kashmir are statehood and special status more than delimitation. A manifesto for tackling the silent pandemic of AMRC, ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन मैम ने लिखा है, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट थी आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। सी वर्ल्ड इज इमर्जिंग फ्रॉम द अक्यूट फेज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया। कोविड-19 हुआ, सबने जस्ट लाइक दैट ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक मेडिसिन लिया। अब क्या होता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन बहुत ज्यादा लेते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है फिर उस डोज ऑफ मेडिसिन के, जैसे फर्स्ट डोज है, फ्रंट डोज है, सेकंड डोज है, लाइक दैट फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है। सो द पॉइंट इज नेक्स्ट टाइम अगर वो वायरस वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए, उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया फॉर दैट एंटीबायोटिक, तो नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, फिर आपको और हायर डोज देना पड़ेगा। और ये इसका भी एक फिर थ्रेशोल्ड आएगा, फिर देयर विल कम अ टाइम कि जब बॉडी पे एंटीबायोटिक वर्क ही नहीं कर रही है, और एंटीबायोटिक्स वर्क करेगी ही नहीं तो इट विल क्रिएट अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो रैपिडली राइजिंग एएमआर है मल्टी सेक्टोरल ग्लोबल नेशनल रेस्पॉन्स, तो इसको एड्रेस करना जरूरी है। सो द पॉइंट इज कि न्यू ड्रग्स बनती हैं ह्यूमन हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को लाइक ओवरकम करने के लिए वर्क करते हैं, इनमें भी रेजिस्टेंट हो जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इन द सेंस कि ये बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, दिस पैथोजेंस हैं जैसे बैक्टीरिया है, और इसमें जो एक माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंट हैं फॉर से दिस ड्रग, फॉर रेजिस्टेंट हैं फॉर से दिस एंटीबायोटिक ड्रग, ये सरवाइव करेंगे और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। सो वेरी सून हम ये देखते हैं कि एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हो जाती है जो रेजिस्टेंट हो जाती है इस एंटीबायोटिक ड्रग से। तो इंडिया में जो कल्चर भी है कि हम एंटीबायोटिक ड्रग्स जस्ट लाइक दैट हम प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर उसको कंज्यूम करते हैं, इस पे एक चेक लगना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड पॉइजनिंग, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं करे। तो ओवरऑल जो मेजर सर्जरी भी है जैसे केमोथेरेपी है, ग्रेटर रिस्क में होंगे अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसके लिए ओईसीडी ने भी इसको इनिशिएट किया था कि हमें जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है एंटीबायोटिक का, इसको हम कम करें। आईसीएमआर ने भी बताया रेजिस्टेंस लेवल इंक्रीज हुआ है 5 to 10%, विच इज नॉट गुड। ओवरऑल जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट है वो बढ़ा है, हाई रेट ऑफ रेजिस्टेंट हो गया। जैसे ये कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, कोट्राइमोजैजोल, forgive my pronunciation, this is एथ्रोमाइसिन एंड दिस इज मेडिसिन। तो द पॉइंट इज कि ये जो मेडिसिन हैं, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स क्या है, अभी काम नहीं कर रही है। ये लाइक फर्स्ट डोज माना जाता था, फ्रंट लाइन माना जाता था, बट दीज मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है बिकॉज इनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। नेक्स्ट टाइम जब तबीयत खराब होगी तो फिर आपको और एडवांस्ड एंटीबायोटिक्स देनी पड़ जाएगी। ओके, अब इसके लिए एक मस्कट कॉन्फ्रेंस है। इंडिया का रोल क्रिटिकल है, एंश्योरिंग एएमआर रिमेन्स हाई ऑन द ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एजेंडा पे। G20 प्रेसिडेंसी में भी इस मैटर को उठाया गया था। ओके, अब मस्कट मिनिस्टरियल मैनिफेस्टो आया एएमआर पे, ये याद रखना है। मस्कट किसका कैपिटल है, आंसर। फिर द पॉइंट इज एएमआर बढ़ रहा है, जूनोटिक डिसीजेस भी बढ़ रहा है, WHO इस पे एक्टिवली वर्क कर रहा है। अब सी इट ऑल्सो प्लान्स टू स्ट्रेंथन प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ डेटा टू ग्लास रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, दिस इज ग्लास रिपोर्ट, ये WHO की है, ग्लास ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम। ओके, फिर हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे, सी ऑल दीज मेडिसिन का, विच इज नॉट एट ऑल गुड। द होल आइडिया इज कि ओवर द काउंटर हम जो मेडिसिन जस्ट लाइक दैट पॉप इन कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फ्रॉम पॉलिसी टू ग्राउंड लेवल लाना है, जनरल अवेयरनेस भी आना चाहिए, और ग्लास रिपोर्ट यहाँ पे याद रखना है। AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इंडिया श्रीलंकन रिफ्यूजीज नीड फेयर कंसिडरेशन। अब सी यहाँ पे बात है, आप चीफ है UNHCR के, श्रीलंका का जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पर तमिल पॉपुलेशन है, सिंघला,
और ये इंडिया का तमिलनाडु है। तो जब यहाँ पे सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में, और सिविल वॉर हुआ लिट्टे, वी टॉक्ड अबाउट इट, सो बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट हुआ टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की इस कोस्ट में। अब जो रिफ्यूजीज है उनको क्या राइट्स होना चाहिए, बिकॉज अच्छा खासा नंबर है, से 58,648 रिफ्यूजीज हैं जो भी 108 कैंप तमिलनाडु में है, उड़ीसा में, अदर एरियाज में। व्हाट अबाउट देम, क्या इनको वापस रिपैट्रिएशन, इनको वापस भेजा जाए वहां पे श्रीलंका में, या फिर इनको इंडिया में डोमिसाइल किया जाए? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। देन जजेस एंड द ल्योर ऑफ पॉलिटिकल जॉब, कि आप रिटायर हो रहे हैं कोर्ट से, देन आप पॉलिटिकल जॉब में आ रहे हैं, इसमें क्या जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही है? ऑफ बजट बोरोविंग, अ स्टेट वाइज लुक। नेक्स्ट इज अ बिट टू इंक्रीज रेलवे प्रेजेंस इन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेट क्या होता है? माल ढुलाई। माल ढुलाई भी रेलवे का एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। A rise in donation received by national parties, ADR. Defense Ministry to spend the most on domestic industries. Appeal from the UN to aid earthquake survivor of Syria. Turkey, Syria दोनों बहुत इम्पैक्ट हुए हैं अर्थक्वेक से। Organ damage persists in long COVID patient even after year. कोविड के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत देखने को मिले। अब एक वर्ड समझते हैं इस आर्टिकल में, और वो है टैक्सिंग विंडफॉल। विंडफॉल प्रॉफिट्स ऑफ ऑयल कंपनीज। विंडफॉल क्या होता है? जैसे आपका रेगुलर, फॉर एग्जांपल, आपको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का, 100 रुपी का, ऐसे आपका 100 रुपी प्रॉफिट हो रहा है, एनुअल प्रॉफिट। अब क्या होता है, वंस इन अ वाइल ऐसा सिचुएशन डेवलप होता है कि वो 100 रुपी का प्रॉफिट ऑल ऑफ अ सडन जंप होके 10,000 रुपीज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन। तो पहले जो टैक्सेशन था वो 100 रुपए के हिसाब से था, बट ऑल ऑफ अ सडन अगर आपका विंडफॉल गेन हुआ है तो इस विंडफॉल गेन पे एक स्पेशल टैक्सेशन लगाने की गवर्नमेंट बात करती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विंडफॉल प्रॉफिट, सो देयर शुड बी सम टैक्सेशन। तो ये विंडफॉल टैक्सेस हैं, ये कैलकुलेट कैसे होंगे, गवर्नमेंट कैसे इसका रेवेन्यू लेगी, प्रॉफिट्स क्या हुआ ऑयल कंपनीज को, रशिया यूक्रेन वॉर का क्या रोल है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम्स ने क्या बताया। तो सी, यूनियन गवर्नमेंट ने हाइक किया विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पे, एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, एटीएफ पे। तो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स किस पे आया? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पे, डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पे, और एटीएफ पे। एटीएफ क्या होता है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये जो चेयरमैन है इन्होंने बताया कि फॉर द टाइम बीइंग विंडफॉल टैक्स अभी कंटिन्यू होगा, बिकॉज अभी बहुत फायदा हुआ है इन सारी इंडस्ट्री सेक्टर्स को। बट अब विंडफॉल प्रॉफिट क्या है? सो विंडफॉल प्रॉफिट रेफर्स टू एन अनएंटिसिपेटेड स्पाइक इन अर्निंग ऑफ एन एंटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सोजीनियस इवेंट विच कुड बी वन ऑफ, वन टाइम है, हमेशा नहीं होगा, वन टाइम है, और प्रोलॉन्ग्ड है, एंड नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम अ बिजनेस डिसीजन। तो दिस इज लाइक एनोमली, कि एक बार बहुत फायदा हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस, तो इसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। अब बीके चतुर्वेदी कमेटी आया फाइनेंशियल पोजीशन ऑयल कंपनी का, इसने बोला कि ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होगा कि किस तरीके से टैक्सेस लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे होगा, शेयरिंग कैसे होगा, इन सब का। सो अभी जो पॉलिसी है, विंडफॉल जो गेन हुआ है उसको कंटिन्यू करने का डिसीजन है, विंडफॉल टैक्सेशन अभी कंटिन्यू होगा। अब विंडफॉल बिकॉज गेन जो हुआ वो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। फॉर एग्जांपल जियो पॉलिटिकल इवेंट, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, कोविड लॉकडाउन हो गया, सो दैट इज वाई ये अभी कंटिन्यू होगा। इसको रिव्यू किया जाता है फॉर टाइम टू टाइम बेसिस पे, बट अभी ये कंटिन्यू होगा। अब सवाल होता है व्हाट लेड टू विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन क्यों हुआ? तो देखिए, रशिया ने यूक्रेन पे जो स्पेशल ऑपरेशन किया उससे वॉलेटिलिटी आई, ऑयल मार्केट में वॉलेटिलिटी आई। रशिया वॉज अमंग द मेजर प्लेयर्स इन ग्लोबल ऑयल मार्केट। रशिया एक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है, अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अलोंग साइड सऊदी, यूएसए, ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। अब बिकॉज ऑफ रशियाज एक्शन, एज अ रिस्पॉन्स टू रशियाज एक्शन, सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज ने स्टॉप कर दिया एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, रशिया पे सैंक्शंस लग गए। They led to sharp increase in fossil fuel prices. Sovereigns went to look for another supplies for its energy needs. तो बिकॉज रशिया पे बैन लगा, फॉसिल फ्यूल का शॉर्टेज हुआ और प्राइस बढ़ गई, डिमांड एंड सप्लाई, तो गवर्नमेंट ने सोचा हमें ऑल्टरनेट कहां से फ्यूल एनर्जी सप्लाई हो सकता है, कल्मिनेटिंग इन मेजर प्रॉफिट फॉर ऑयल कंपनीज। और इससे क्या हुआ, ऑयल कंपनीज को बड़ा फायदा हुआ। इंडिया में एक और स्पेशलिटी होता है कि हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं,
उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और ऑयल रिफाइनरीज हैं ये बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करती हैं ऑयल प्रोडक्ट्स को. So this was a total reversal of fortunes compared to the onset of the pandemic, when oil had struggled to even attain fiscal break even, because pandemic में oil का demand ही खत्म हो गया था, oil sale ही नहीं हो रहा था, तो losses हुए थे. According to Reuters, big oil companies जैसे भारत पेट्रोलियम etc., ब्रिटिश भारत पेट्रोलियम, दिस शेवरॉन etc., एक्सॉन, ये टोटल डबल हो गया है प्रॉफिट 2022 में, बिकॉज ऑयल का कॉस्ट बढ़ गया, क्रूड ऑयल का कॉस्ट बढ़ गया. ओके, तो दैट इज वाई इनका प्रॉफिट बढ़ गया. ओएनजीसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में, ये 28,000 रुपए का करोड़ था. तो दिस वाज लाइक कि सडन स्पाइक हुआ है प्रॉफिट में. सो दैट इज वाई गवर्नमेंट यहाँ पे विंडफॉल टैक्सेशन लगाने की बात करती है. ओके, तो पोटेंशियली आगे क्या होगा, पोटेंशियली आगे क्या होगा, वर्ल्ड ऑयल सप्लाई लुक सेट टू एक्सीड डिमांड. डिमांड से ज्यादा एक्सीड डिमांड हो रहा है थ्रू द फर्स्ट ऑफ. डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, बैलेंस अब वापस डेफिसिट में आएगा, प्राइस थोड़ा मॉडरेट भी होना चाहिए, लेट अस सी. बट फॉर टाइम बीइंग अभी विंडफॉल गेन हुआ है ऑयल कंपनीज को. सो अब इन पे विंडफॉल टैक्सेशन लगाने की बात की थी. वॉलेटिलिटी हुआ था यूक्रेन क्राइसिस के बाद. ओके, यहाँ पे बात है अंडरस्टैंड इंडियाज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. अक्सर हम मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहिए. मेंटल हेल्थ केयर 2017. और यू नो समटाइम्स ना, एज अ स्टूडेंट आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल. समटाइम्स स्टूडेंट्स ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट सेट कर लेते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो एक मेंटल इमेज बना लेते हैं कि सब चीज परफेक्टली इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में फेवर में चला जाएगा. बट प्रैक्टिकलिटी और रियल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है. सो फिर जब चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चलती, बिकॉज प्लान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो फिर हम मेंटल प्रेशर फील करने लग जाते हैं, फिर हम डिस्करेज हो जाते हैं, फिर हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और फिर हम मैदान छोड़ के भाग जाते हैं. तो ये इसलिए भी जरूरी है कि हम थोड़े रियलिस्टिक भी हो कि लाइक ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सब पढ़ लेंगे. यू हैव टू बी लाइक स्टेप बाय स्टेप आपका स्ट्रेंथ डेवलप होगा. प्लस एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप लोग कंपैरिजन बहुत करते हो. कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. हर स्टूडेंट का जर्नी अलग होता है, अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे आर एट अ हायर लेवल. आपने अभी स्टार्ट किया है, बट आप कंपैरिजन करोगे, उनको देख के डिस्करेज होगे और आप पढ़ना छोड़ दोगे, तो इट विल नॉट बी राइट थिंग फॉर यू. ओके, तो द पॉइंट इज मेंटल हेल्थ में खुद से भी एफर्ट्स डालने चाहिए. हमें अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करने के एफर्ट्स डालने चाहिए. सी, यहाँ पे प्राइमरली जो बात है, एनएचआरसी ने बोला कि जो हमारे यहाँ लाइक मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर बहुत डिफिकल्टीज है. वहाँ पे जो राइट्स हैं मेंटली इल पेशेंट्स के, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स इंफ्रिंजमेंट हो रहा है. ये एनएचआरसी की रिपोर्ट है. एनएचआरसी ऐसे काम करता है, ये जो कम्युनिटी के जो राइट्स हैं सो मोटो कॉग्निजांस भी लेता है, वहाँ पे देखता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया फिजिकल रिस्ट्रेंड है, अनमॉडिफाइड इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी दी जा रही है, हाइजीन नहीं है, सैनिटेशन, फूड, रिक्रिएशन, प्राइवेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब यहाँ पर नहीं दिया है. तो चैलेंजेस हैं. द पॉइंट इज मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे भी ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड करना हमें जरूरी है. ओके, लिव इन, बी पार्ट ऑफ एंड नॉट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम सोसाइटी. लेट अस सी, ये मैं फिर बार बार बताता हूँ, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, स्पेशली जो इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो आज की डेट में सिचुएशन है, आप ना अच्छे से पढ़ाई करो, 100% पढ़ाई करो, बट मेक श्योर कि ये प्रोसेस आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करे. मैं बार बार यही बोलता हूँ, एग्जाम्स एंड ऑफ लाइफ नहीं होते हैं. इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट इज जस्ट वन विंडो. देयर आर सो मेनी अदर गेटवेज इन लाइफ जिसके थ्रू भी आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो. इट इज नॉट लाइक कि देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट एग्जाम या वन आईआईटी या वन मेडिकल या वन दिस ओनली. नो, ऐसा नहीं होता है. ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग. Okay, so you have to like take care of your mental health on your own as well. On your own, खुद से अपना ख्याल रखो. Okay, text and context. The role of welfare schemes and policies for this parharias of Jharkhand. Okay, mainstream में लाना है ट्राइबल कम्युनिटी को. vulnerability है फूड सिक्योरिटी, फूड का, उसको ओवरकम करना है. वेलफेयर इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे है कॉर्पस और फंड्स. कॉर्पस और फंड्स मोर और लेस हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. कॉर्पस इज यूज्ड दीज डेज इन द सेंस ऑफ द प्रिंसिपल द डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इंटरेस्ट और इनकम ऑफ एन एस्टेट और इन्वेस्टमेंट. देयर इज सम मनी, देयर इज सम प्रिंसिपल.
In this sense, word has been used for a long time in American. जैसे PRT upon 100 होता है, तो this principle. Okay. Then ham-headed or ham-fisted means clumsy है, heavy-handed है. Okay, ham-handed, ham-fisted. Then Banaras wants to know the meaning of the idiom. There is no love lost between them. तो no love lost means no love lost between them का मतलब है कि they dislike each other, but अभी भी like there is no love lost between them. Okay. So contradictory meaning है they love each other, they don't like each other. So from the context one had to find out कि इसका क्या मतलब वहां पर है. For example, several readers want to know the meaning of shoot from the hip. Shoot from the hip मतलब impulsive decision है वो. Impulsive decision है, reckless decision है. Okay. Yes. Then this is know the meaning of this phi. Phi means you should be ashamed of you. Phi means एक archaic. It is hardly used these days. It is an expression of exclamation, disgust or shock. Iridescent का मतलब है वेरिंग इन कलर व्हेन सीन डिफरेंट लाइट्स, चमक रहा है, हैविंग अ प्ले ऑफ लस्टरस, जैसे मेटल होता है लस्टरस होता है. ओके. देन यहाँ पर है सोक्रेट्स ने कहा था फिलोसोफर वाज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर करप्टिंग द माइंड्स ऑफ द यूथ. कई बार क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क आता है बट द पॉइंट इज द वर्ड इज नॉट रेडी फॉर दैट पर्सन, वर्ड इज नॉट रेडी फॉर दैट कॉन्सेप्ट. सो कुछ ऐसा यहाँ पे भी हुआ था. Then this is Havana Spanish War. अब सी गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिकस, हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी थी. वर्ड ये मानने को ही तैयार नहीं था कि अर्थ नहीं एक्चुअली सन नहीं एक्चुअली अर्थ मूव कर रही है. पहले केवल जियोसेंट्रिक थ्योरी थी. वर्ड वाज नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट कि एक्चुअली इट इज हीलियोसेंट्रिक, सन इज एट द सेंटर एंड वी आर मूविंग. तो यहाँ पे भी बहुत रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था. ओके. देन एनियाक है, जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है 1945 का एंड ऑफिशियल फ्लैग वाला है. दिस इज बप्पी लहरीदा, इंडियन सिंगर जिन्होंने पॉपुलराइज किया था डिस्को म्यूजिक को इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में. ओके. और मिर्जा गालिब है, दिस पोएट स्टैचू इज लोकेटेड हियर. ऑलराइट. सो ये कुछ क्विजेस होते हैं जो हमारे सिलेबस के विद इन होते हैं, उनको देखना चाहिए. दिस इज इंडिजिनस कैरियर विक्रांत विल बी ऑपरेशनल बाय ईयर एंड, नेवी चीफ ने कहा. तो यहाँ पर अभी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, यहाँ पे मिग 29K ने लैंडिंग करके बताया था. तो दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर एंड दिस इज इंडिजिनस, सो दिस इज रियली गुड. MF स्टार मल्टी फंक्शनल डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार. इसके अलावा इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स लगाए जाएंगे इसको वॉर रेडी करने के लिए, ऑपरेशन रेडी करने के लिए. LCA नेवी लैंडेड INS विक्रांत विद इन 6 months. LCA ने भी लैंड किया, मिग 29K ने भी लैंड किया है यहाँ पर. अब सी एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी होते हैं डीप सी ऑपरेशंस के लिए और हमें ब्लू वाटर नेवी भी बनना है. तो इससे पहले जैसे INS विक्रमादित्य, फिर DRDO भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहा है, ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर है. ओके. सो द पॉइंट इज कि ये ऑन ट्रैक है और हमें लाइक एयरक्राफ्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे. 45 एयरक्राफ्ट्स हम लेंगे बाय 2040. मिग 29K अब ज्यादा टाइम नहीं लास्ट करेंगे, दैट इज वाई हम नए एयरक्राफ्ट कैरियर का भी अभी वर्क कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू परचेज बोइंग, सुपर हॉर्नेट, डेसॉल का रफेल एम, अभी सब कंसिडरेशन में है. डोमेस्टिक इंडस्ट्री गेट 75% डिफेंस कैपिटल आउटले. सो दिस इज गुड. कैपिटल आउटले मतलब इतना पैसा यहाँ पे अलोकेट किया है. ओके. सो ये वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए, सेमी एक्टिव लेजर सीक बेस्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है. जिष्णु एक ड्रोन डिलीवर्ड मिसाइल है. लाइट वेट मिनिएचराइज्ड मिसाइल है यहाँ पर. नाविक है, GPS है हमारा देसी इंडिजिनस नाविक. देन इसके अलावा ड्रोन रडार है, डिफेंस रिसर्च DRDO ने ये सब बातें बताई. ब्लू फायर टच एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन सॉफ्टवेयर भी होगा और हाई फ्रीक्वेंसी डिफाइंड रेडियो. द आइडिया इज कि अब जो कल्चर आ रहा है हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एनकरेज कर रहे हैं. 75% कैपिटल आउटले डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए. अब जैसे HAL प्रोवाइड कर रहा है मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल ऑफ MQ-9B ड्रोन इंजन इन इंडिया. Then governors should not enter political arena. Then this is India Bangladesh to back each other for UNSC membership. Act East policy, neighborhood first policy. Okay. Then Uttarakhand firms up Joshimath relief plan. And this is China must take a haircut. ये haircut का मतलब क्या होता है? Tell. What is the meaning of haircut on its loans to poor countries? Scotland leader. Then this is government monitor कर रही है. See, import जब करते हैं तो पैसा खर्च होता है. तो government monitoring imports to detect any surge that can hurt economy.
आत्मनिर्भर भारत अप्रोच है, इनवर्ड लुकिंग नहीं है। वी आर ग्लोबलाइज्ड कंट्री, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है, बट सेल्फ रिलायंस इज इंपॉर्टेंट। तो द पॉइंट इज फ्लड वॉच है, बहुत सारे जो हम इनपुट आ रहा है, बहुत सारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सेक्टर वाइज इंपोर्ट पे भी गवर्नमेंट एक मॉनिटरिंग करती है कि ऐसा तो नहीं कि वो इंपोर्ट हमारी लोकल डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लाइक डैमेज कर रहा है, या इट इज लाइक डंपिंग है, या फिर वो सिस्टमेटिकली ट्रेड वॉर का एक पार्ट बनता जा रहा है। गवर्नमेंट इसको मॉनिटरिंग करती है। गवर्नमेंट में मल फ्यूल टैक्स टू कूल प्राइसेस, सीरियल इन्फ्लेशन भी है यहाँ पे। ओके, देन दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अभी आंसर डिस्कशंस हैं, उसको देखते हैं। लेट अस सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट। सी, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करो और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे मेंस में, आपका प्रीलिम्स भी बहुत अच्छा से होगा। दिस इज अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, ओल्ड स्कूल मेथड, एंड दिस एक्चुअली वर्क्स, दिस एक्चुअली वर्क्स। ओके, तो दो सवाल थे, पहला था इंडिया फ्रांस रिलेशंस और दूसरा था फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया हमें बताना था। लेट अस बिगिन। सौरभ इज सो डिसिप्लिन, सो सिस्टमैटिक, दिस इज रियली रियली गुड। सी, प्रिपेयर अ नोट ऑन द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। और ये बहुत अच्छे आंसर्स हैं, दीज आर रियली रियली गुड आंसर्स। आप ऐसा लिखोगे एग्जाम में, आपको 100% मेंस आपका क्वालिफाई होगा, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स से। दिस इज अ वेरी गुड कॉपी। सी, यहाँ हमने सारा बताया, 1 2 3 4 सारा जानकारी हो गई। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बताया, फिर आपने ज्योग्राफी भी यहाँ पे बताया। तो सी, अगर हमारा स्ट्रेंथ है कोई सब्जेक्ट, तो वो हमें बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। इससे ना एक हमारा एक रेपुटेशन इमेज बन जाता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है कि इसको नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है। तो सर्टेन क्वेश्चंस, जैसे वो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो वहां का क्वेश्चन, इंटरनेशनल अफेयर्स का है, पॉलिटी का है, कुछ सवाल इतने बढ़िया लिखिए कि वो आपका एक ट्रेंड सेट कर दे, ट्रेंड सेट कर दे। दिस इज रियली गुड। ज्योग्राफी वेरी नाइस। फिर आपने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताया, दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड वर्क। इंडियन डेजर्ट, और साइमल्टेनियसली आपको सारी चीजें याद भी हो गई, प्रिपेयर भी हो गया। सो दिस इज अ विन विन थिंग। नोट्स भी तैयार हो गए, प्रैक्टिस भी तैयार हो गए। यू आर डूइंग रियली गुड जॉब। दीक्षा, दीक्षा भी देखो कितना बढ़िया आंसर लिखती है। इंडिया फ्रांस रिलेशन, अब देखो टाइमलाइन बना दिया, 1747, ऑर्गेनाइज्ड, वेरी गुड। पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ये सारे एरियाज बताए। हेडिंग, सब हेडिंग, सेग्रीगेट करना चाहिए चीजों को। फिर लेटेस्ट करंट अफेयर्स का न्यूज बताया, और कंक्लूजन एंड पॉजिटिव नोट में उसको एंड करें। वेरी नाइस। देन इंडिया फ्रांस रिलेशन, सौरभ दिस इज गुड। 5 पिलर्स है। बायलैटरल रिलेशंस बताया आपने, एनवायरमेंट एंड वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। इसको अपडेट करते रहना है, नए नए पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो लिखते जाना है करंट अफेयर्स के। इंडिया फ्रांस, बिकॉज आईआर बड़ा डायनामिक सब्जेक्ट होता है। वेरी गुड। विश्वजीत ने आंसर राइटिंग किया है, दिस इज रियली गुड। देन यहाँ पर सारे वैल्यूज बताए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हुआ है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यूएनएससी, डिफेंस कोऑपरेशन। तो सी, सेग्रीगेट करना चाहिए। वेरी नाइस। अब इसमें करंट अफेयर्स के और पॉइंट्स आप लिखना। कामिल ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। फिजियोग्राफिक डिवीजन, मैप इज गुड, थोड़ा सा और प्रोपोर्शनेट करें इसे। फिजियोग्राफी में ये सारे पिलर्स हैं। सी, राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लिखते हो आप, यू आर रियली गुड, इसको कंटिन्यू करना है। फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिफरेंस भी। तो सी, हर स्टूडेंट का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी गुड। नंदिनी, दिस इज गुड। नंदिनी भी बहुत अच्छा आंसर लिखती है। सी, ये पूरा मैप वर्क भी तैयार हो गया, अब आपको अलग से मैप वर्क की जरूरत नहीं है, इसमें सब तैयार हो गया आपका। वेरी नाइस। सी, दिस इज रिलेशंस एंड दिस इज काउंटर टेररिज्म, वेरी गुड। नेबर्स, फैंटास्टिक। रत्ना प्रिया, दिस इज गुड, आप भी बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो। स्पेस, कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स की लेयर्स डालनी है इसमें बहुत सारी। ओके, देन प्रियंका, प्रियंका इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड। इंडिया एंड फ्रांस, डायग्राम आ गया, डायग्राम है मतलब इट इज रियली गुड। और ऐसे हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, इससे हम ज्यादा रेंज कवर कर पाते हैं। जो सब्जेक्टिव है ना, जीएस 1 2 3 4, इसमें ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छे से वर्क करती है, नो इश्यूज एट ऑल। नेहा, दिस इज इंडिया फ्रांस रिलेशन, क्रोनोलॉजिकल बताया आपने, वेरी नाइस। सी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सब हेडिंग्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। दीपाली, दीपाली का प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। दिस इज फ्रांस इंडिया, वेरी नाइस। टाइमलाइन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्पेस, सिविल, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड, वंडरफुल। दिस मैप इज ऑल्सो गुड। फिजियोग्राफिकल डिवीजन, दिस इज वेरी गुड। डायग्राम, गुड। तो द पॉइंट इज, बहुत अच्छे से हमें इंडिया की मैपिंग आनी चाहिए, हर एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। धर्मेश, इंडिया फ्रांस, वेरी नाइस। सी, सारे लेटेस्ट पॉइंट्स भी लिखे, पैसिफिक, देन फ्रेंच स्कॉर्पियन, सिविल न्यूक्लियर, यूएनएससी,
विजन और लेटेस्ट अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, हाई लेवल इंडिया फ्रांस पॉलिटिकल डायलॉग, वेरी गुड। ओके, देन दिस इज रत्ना प्रिया ने बहुत अच्छा फिजियोग्राफिक डिवीजन बनाया मैप का, थोड़ा सा स्कोर स्ट्रेटन कर दें हम। दिस इज गुड, वेरी नाइस। सी, आपका मैप वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। दिस इज सच अ गुड एक्सरसाइज। शीतल, वेरी गुड हैंड राइटिंग, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। शुरू में ही मैप बनाया करो, इसको शुरू में ही बना दो। मैप हमेशा शुरू में बनाना है। नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, गुड, वेरी नाइस। दिस इज वेरी गुड कॉपी, वंडरफुल वर्क, एक्सीलेंट। मधुरा, दिस इज रियली गुड। सी, क्रोनोलॉजी बताया। फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इससे सवाल आएगा। मैरीटाइम चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, फैंटास्टिक। नंदिनी, फिजियोग्राफिक डिवीजन, वेरी गुड। दिस इज सच अ गुड मैप, बहुत डिटेल में सब बताया, वेरी नाइस। एग्जाम्पल्स, तो द पॉइंट इज, जैसे हम अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, हमें एटलस साथ में रखना है और सारे जो पॉइंट्स हैं उसको नोट करते हुए जाना है। इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। Alia, this is India-France relations. Very good. Energy, space, tourism. Very nice. हरजिंदर, दिस इज गुड। सी, रफेल, अब जैसे एग्जाम्पल्स आ गए, जहां एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कॉपी बेहतर हो रही है, वेरी गुड। सो इस तरीके से पार्टिसिपेट करिए आंसर राइटिंग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।